A disciplined mind leads to happiness and success, while an undisciplined mind leads to suffering. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. As I have started with a new series on the Competition Act, and in this series I have discussed with the first lecture. In this lecture I have discussed definite needs, introduction, and objects of Competition Act. Today I will discuss with the certain definitions of the Competition Act that is defined under Section 2 of the Competition Act. आज मैं सेक्शन 2 के अंदर दी गई कुछ परिभाषाओं को डिफाइन करने वाली हूँ. सबसे पहली परिभाषा आपकी आती है सेक्शन 2 क्लोज ए के तहत, दैट इज द डेफिनेशन गिवन ऑफ द एक्विजिशन. इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर. Number 1, shares, voting rights or assets of any enterprise, or control over the management or control over the assets of any enterprise. This means we can say that acquisition means acquiring ownership or possession from another. In other words, acquisition means control over the assets. Control over the assets or control over the management by virtue of any contract. Understanding the arrangement. And two enterprises then becomes the association by the bond of common interest. This means control over the management means participation in management. An acquisition of an enterprise may be directly or indirectly. It is direct when it is acquired directly by the acquiring the it, and indirectly when we can say that it is indirectly when it goes through one or more intermediaries. जब यहाँ पे कोई मध्यस्थ कार्य करते हैं. तो सबसे पहली परिभाषा मैंने आपको बताई एक्विजिशन, जिसको हम कहते हैं अर्जन करना. जैसे कि आपको पता है कि अर्जन का मतलब होता है कि किसी उद्यम के शेयरों, मतदान एवं अधिकारों या अस्थियों का अर्जन करना, या फिर किसी उद्यम के प्रबंध पर नियंत्रण या अस्थियों पर नियंत्रण का प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से अर्जन करना या अर्जन करने के लिए सहमत होना. So this was the first definition that is given in the section 2 clause A. Now come to second definition, that is the definition of agreement, which is defined under section 2B. सेकेंड परिभाषा आपकी आती है सेक्शन 2B के तहत, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट. इफ यू टॉक अबाउट द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कंसर्ट that is relating to whether or not such arrangement, understanding or action is formal or in writing. या फिर आप कह सकते हैं whether or not such arrangement, understanding or action is intended to be enforceable by the legal proceedings. This means it covers all the arrangements, understanding and action in concert between the two or more parties. Agreement may be in writing or it may be oral, or it may be enforceable by the legal proceedings, or it may not be enforceable by the legal proceedings. This means agreement not enforceable by the law, that is also covered under the definition of agreement under this section. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम सेक्शन 2B की बात करते हैं तो वो करार की परिभाषा को बताता है. सेक्शन 2B डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ करार. करार मतलब करार के अंतर्गत कोई भी ठहराव, समझौता या कार्रवाई सम्मिलित है, चाहे ऐसा जो वास्तविक समझौता, कार्रवाई औपचारिक या लिखित में हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अथवा चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्रवाई विधिक कार्यवाहियों द्वारा परिवर्तन के लिए आसित हो या ना हो, तो उन सबको आपके सेक्शन 2B के तहत करार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा. If we talk about the third definition, that is the definition of cartel. तीसरी परिभाषा आप इसी की सीरीज में आती है, that is the section 2C. That defines the term cartel. Cartel means उत्पादक संघ. If we talk about the definition of cartel, it includes an association of producers, sellers, distributors, traders or service providers who by arrangement among themselves limit, control or attempt to control the production, distribution, sale or price of or trade in goods or provisions of the services. This means definition of cartel is inclusive है, that covers both trade as well as competition. जैसे कि मैंने आपको बताया जो तीसरी परिभाषा इसकी है सेक्शन 2C के तहत, वो आपकी परिभाषा बताती है कार्टेल की, जिसको हम कहते हैं व्यापक संघ, व्यापार संघ या उत्पादक संघ. व्यापार संघ या उत्पादक संघ के अंतर्गत उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरणकों, व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं का संगम है, जो उनके बीच हुए करार के द्वारा माल के उत्पादन, वितरण, विक्रय या उसकी कीमत या उसके व्यापार या सेवा प्रदान करने को परिसीमित, नियंत्रित करता है या नियंत्रण करने का प्रयास करता है.
तो वो सारे जो संघ है वो आपके व्यापक संघ, व्यापार संघ या फिर उत्पादक संघ कहलाएंगे। तो सेक्शन 2C जो है वो आपको कार्टेल की परिभाषा बताता है। If we talk about the next definition, that is the definition given under section 2D. आपकी जो नेक्स्ट परिभाषा है वो है सेक्शन 2D के तहत, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ चेयरपर्सन। सेक्शन 2D जो वो चेयरपर्सन की परिभाषा बताता है और उसके हिसाब से ये कहा गया है कि इट मीन्स एनी चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 8 क्लोज 1। चेयरपर्सन का मतलब यहाँ पे सेक्शन 8 क्लोज 1 के तहत जो चेयरपर्सन अपॉइंट किया जा रहा है कमीशन के द्वारा, उसे चेयरपर्सन की परिभाषा में लिया जाएगा। If we talk about the next definition, that is the definition under section 2E, that is the definition of commission. Here the term commission means Competition Commission of India, CCI. तो यहाँ पे जब आप कमीशन की परिभाषा की बात करते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन और कमीशन ऑफ इंडिया से मतलब होगा इसका, मीन CCI जो है वो इसके अंदर कमीशन की परिभाषा में शामिल होगा। दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E. If we talk about the next definition, that is the definition of consumer, which is defined under section 2F. नेक्स्ट परिभाषा जो आपकी आती है दैट इज द सेक्शन 2F, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर। जब हम कंज्यूमर की परिभाषा की बात करते हैं सेक्शन 2F के तहत अंडर द कंपटीशन एक्ट, इट मीन्स एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर कंसिडरेशन। कोई भी व्यक्ति जो गुड्स को खरीदता है कंसिडरेशन के बदले में। कंसिडरेशन मीन्स दैट हैज वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, कोई भी चीज़ जिसकी कानून की नज़र में वैल्यू हो। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर की परिभाषा बताते हैं तो कंज्यूमर के अंदर क्या कहेंगे, इट मीन्स एनी पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस टू बी पेड, पार्सली पेड और पार्सली प्रोमिस टू बी पेड, और अंडर एनी सिस्टम और डेफर्ड पेमेंट। इट आल्सो इंक्लूड्स any such user of goods other than the person who buys the goods for the consideration paid or promised to be paid or partially promised to be paid, or under any system of deferred payment when such use if made with the approval of such person, whether such purchase of goods is for resale or for any other common purpose or for personal use। जब हम कंज्यूमर की परिभाषा बताते हैं, जैसे आपने गुड्स सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी पढ़ा होगा, तो जब कंज्यूमर की परिभाषा जब इस सेक्शन के तहत ली जाती है सेक्शन 2F के तहत, तो यहाँ पे कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता से अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो किसी ऐसे प्रतिफल के बदले जिसका संदाय कर दिया गया है या फिर वचन दे दिया गया है या फिर कुछ हिस्से का संदाय कर दिया गया है या कुछ हिस्से का वचन दे दिया गया है कि बाकी हम बाद में पे कर देंगे, तो किसी अस्थगित संदाय की प्रदत्ति की अधीन किसी माल का क्रय करता है, या इसके अंतर्गत ऐसा किसी भी व्यक्ति ने जो किसी ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागता संदाय किया गया है या फिर भागता वचन दिया गया है या अस्थगित संदाय की प्रदत्ति के अधीन ऐसे माल का विक्रय करता है, जिसे ऐसे माल का कोई उपभोक्ता भी है जो ऐसे उपयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है, चाहे माल का जो उपयोग है वो क्रय के लिए किया गया, मतलब फर्दर क्रय विक्रय के हिसाब से किया गया या फिर उसके अपने पर्सनल यूज के लिए किया गया। तो जनरली मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ इसकी परिभाषा। जैसा कि आपको पता है कि उपभोक्ता का मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपने उपभोग के लिए यदि वस्तु खरीद रहा है, आपने ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पढ़ा था कि जो कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रतिफल के बदले में कोई भी वस्तु खरीदता है या सेवाएं लेता है तो वो कंज्यूमर कहलाता है। परंतु वहाँ पे जब आपने देखा था तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर तो वहाँ पे केवल वही व्यक्ति शामिल किए जा रहे थे जो अपने उपभोग के लिए वस्तु खरीद रहे थे। यदि वो फर्दर विक्रय के लिए वस्तु खरीद रहे थे तो वो उपभोक्ता की परिभाषा में शामिल नहीं थे। बट इफ यू टॉक अबाउट द कंपटीशन एक्ट, यदि हम कंपटीशन एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे वो उपभोक्ता भी शामिल होंगे जो फर्दर विक्रय के हित पर्पज से यदि वस्तु खरीद रहे हैं, तो वो भी उपभोक्ता की कैटेगरी में शामिल होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये अंतर है आपकी सेल्स ऑफ गुड एक्ट की परिभाषा और कंपटीशन एक्ट की परिभाषा के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया उपभोक्ता की परिभाषा सेक्शन 2F के तहत दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये डिफरेंस उसमें किया गया है, मतलब फर्दर विक्रय के हिसाब से किया गया या फिर उसके अपने पर्सनल यूज के लिए किया गया। तो जनरली मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ इसकी परिभाषा। जैसा कि आपको पता है कि उपभोक्ता का मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपने उपभोग के लिए यदि वस्तु खरीद रहा है, आपने ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पढ़ा था कि जो कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रतिफल के बदले में कोई भी वस्तु खरीदता है या सेवाएं लेता है तो वो कंज्यूमर कहलाता है। परंतु वहाँ पे जब आपने देखा था तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर तो वहाँ पे केवल वही व्यक्ति शामिल किए जा रहे थे जो अपने उपभोग के लिए वस्तु खरीद रहे थे। यदि वो फर्दर विक्रय के लिए वस्तु खरीद रहे थे तो वो उपभोक्ता की परिभाषा में शामिल नहीं थे। बट इफ यू टॉक अबाउट द कंपटीशन एक्ट, यदि हम कंपटीशन एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे वो उपभोक्ता भी शामिल होंगे जो फर्दर विक्रय के हित पर्पज से यदि वस्तु खरीद रहे हैं, तो वो भी उपभोक्ता की कैटेगरी में शामिल होंगे।
तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये अंतर है आपकी सेल्स ऑफ गुड एक्ट की परिभाषा और कंपटीशन एक्ट की परिभाषा के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया, उपभोक्ता की परिभाषा सेक्शन 2F के तहत दी गई है। तो ये टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी आती है सेक्शन 2G के तहत, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर जनरल। इट मीन्स डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 16 क्लोज 1। यदि हम सेक्शन 16 क्लोज 1 की बात करते हैं, सेक्शन 60 क्लोज 1 के अंदर डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट का प्रावधान रखा गया है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डायरेक्टर जनरल का मतलब जिसकी अपॉइंटमेंट 16 क्लोज 1 के तहत की गई है कंपटीशन एक्ट के, तो वहाँ पे वो सब इंक्लूड होंगे। इट इंक्लूड्स एनी एडिशनल ज्वाइंट डिप्टी या असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। एंड मेन फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर जनरल इज टू कंडक्ट investigation into the contravention of the provisions of this act and any rules or regulations made or specified अंडर सेक्शन 41 ऑफ द, मतलब यहाँ पे जो सेक्शन 41 उसके अंदर जो इनका कहीं ना कहीं इनका रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशंस का कहीं ना कहीं भंग किया गया है, उनका कंट्रावेंशन किया गया है, तो डायरेक्टर जनरल उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एंड ही हैज ऑल द पावर्स एज कन्फर्ड बाय CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी उनके ऊपर पावर कन्फर्ट की जाएगी वो उन पावर्स को यूज करेंगे और यूज करते हुए वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्टर जनरल के अंदर आपको सेक्शन 16 क्लोज 1 के अंदर इसके अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया गया और जो 16 क्लोज 1 के अंदर जो अपॉइंटमेंट की जा रही है उसी को डायरेक्टर जनरल कहा जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2H, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्राइज। नेक्स्ट परिभाषा आपकी आती है सेक्शन 2H के तहत एंटरप्राइज की। यदि हम बात करते हैं एंटरप्राइज की, एंटरप्राइज जिसे हम हिंदी में कहते हैं उद्यम, तो एंटरप्राइज किसे कहेंगे आप इसके अंदर? इट मीन्स अ पर्सन और ए डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट who or which is or has been engaged in any activity relating to the production, storage, supply, distribution, acquisition or control of the article of goods. Next is the provision of services of any kind or investment or the business of acquiring, holding, underwriting or dealing with shares, debentures or other securities of any other body, corporate, either directly or through any one or more other units or division or subsidiaries. Further, such unit or division or subsidiaries may be located at the same place or where the enterprise is located, at a different place or at a different place. The department of the government is also the enterprise. यदि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो वो भी एंटरप्राइज की परिभाषा में होंगे, बट इट डजंट इंक्लूड एनी एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटिंग टू द सोवरेन फंक्शन of the government, include all activities carried on by the department of the central government dealing with the atomic energy, currency, defense and space. जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपकी जो नेक्स्ट परिभाषा है वो आपकी, मैंने आपको बताया एंटरप्राइज की परिभाषा दी गई है जिसको हम कहते हैं सेक्शन 2H। सेक्शन 2H के तहत मैंने जैसा आपको बताया कि उद्यम की परिभाषा दी गई है। यदि हम सेक्शन 2H के अंदर उद्यम की परिभाषा की बात करते हैं तो उद्यम का से अभिप्राय एक ऐसे व्यक्ति, सरकार या विभाग से है जो वस्तुओं या मालों के उत्पादन, भंडारण, प्रदाय, वितरण, अर्जन या नियंत्रण या किसी भी प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था करने से संबंधित किसी क्रियाकलाप में या किसी अन्य निगमित निकाय के शेयरों, डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, हिस्सेदारी या समव्यवहार में या फिर प्रत्यक्ष रूप से या उसकी एक या एक से अधिक इकाइयों या प्रभोगों द्वारा समूह लैंगियों के माध्यम से में लगा हुआ है, चाहे ऐसी इकाई, प्रभाग या समनुबंधी उसी संस्थान पर स्थित हो या फिर किसी अन्य स्थान पर स्थित हो, परंतु इसके अंतर्गत सरकार के कोई ऐसी क्रियाकलाप नहीं आएंगे जो सरकार के संप्रभु कृत्यों से संबंधित हो। यदि वो अपने कोई सोवरेन फंक्शन को जहाँ पे सरकार निर्वहन कर रही है वो इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। परंतु इसके तहत यदि आप देखेंगे तो परमाणु ऊर्जा, करेंसी रक्षा या करेंसी रक्षा, अंतरिक्ष से संबंधित जो विभाग है उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, एंटरप्राइज का मतलब क्या बताया? उद्यम, जो है वो प्राइवेट हो या फिर वो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसके अंदर वो सारे उद्यम शामिल हैं। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन गिवन अंडर सेक्शन 2B, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। आपकी जो नेक्स्ट परिभाषा इसी की सीरीज में आपके आती है गुड्स की परिभाषा, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2P। वो जो परिभाषा दी गई वो सेक्शन 2P के अंदर दी गई है। तो नेक्स्ट परिभाषा जो आप देखेंगे तो इसके अंदर गुड्स की जो परिभाषा है उसके हिसाब से इट मीन्स गुड्स एज डिफाइंड इन द सेल्स ऑफ गुड एक्ट। आपने सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर गुड्स की परिभाषा पढ़ी थी, तो वो जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के द्वारा जो गुड्स की परिभाषा दी गई थी, माल की जो परिभाषा दी गई थी, वही परिभाषा यहाँ भी शामिल होगी, वही सेम परिभाषा यहाँ भी दी जाएगी।
जैसा कि आपको पता है कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट में क्या परिभाषा आपने पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड एक्ट, गुड्स मीन्स एंड इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रोसेस्ड एंड माइंड, debentures, stock, shares after the allotment, and in relation to the goods supplied, distributed or controlled in India, goods imported into India. तो जिसमें माल से अभिप्राय जो अभिप्राय है वो बिल्कुल माल विक्रय अधिनियम द्वारा दी गई परिभाषा से ही है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। नंबर 1, विनिर्मित, संसाधित या खान से प्राप्त उत्पाद आवंटन के पश्चात, डिबेंचर, स्टॉक या शेयर। एंड द थर्ड वन इज भारत में प्रदत्त, वितरित या नियंत्रित माल के संदर्भ में भारत में आयात किया गया माल। तो ये सब वो वस्तुएं जो गुड्स की परिभाषा में शामिल होंगे, और दैट इज द डेफिनेशन, बिल्कुल सेम वही परिभाषा है जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के द्वारा दी गई है। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन दैट सेक्शन 8 क्लोज 1 के अंदर की गई है, तो यहाँ पे जो 8 क्लोज 1 के तहत जो भी मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे कंपटीशन कमीशन के द्वारा, तो वो सारे मेंबर इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो सेक्शन 2J जो है वो आपको मेंबर की परिभाषा देता है। जैसा कि मैंने बताया है कि नेक्स्ट परिभाषा आपकी आती है मेंबर की। नेक्स्ट परिभाषा जो आपको है वो मेंबर की परिभाषा दी गई है, और वो परिभाषा आपको कहती है कि मेंबर का मतलब तो क्या होगा। इट मीन्स एनी मेंबर ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 8 क्लोज 1 दी एक्ट, कि इस एक्ट के सेक्शन 8 क्लोज 1 के तहत जो मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो सारे मेंबर इसके अंदर शामिल होंगे। सेक्शन 2J जो है वो मेंबर की परिभाषा देता है, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं सदस्य। इसका मतलब, इससे अभिप्राय सेक्शन 8 क्लोज 1 के अधीन नियुक्त अयोग्य सदस्यों से है, और इसके अंदर अध्यक्ष भी शामिल होगा। If we talk about the next definition, that is the definition of notification under section 2K. सेक्शन 2K जो नोटिफिकेशन की परिभाषा देता है वो ये कहता है कि इट मीन्स एनी नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। कोई भी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट के अंदर दिया गया है, पब्लिश कराया गया है, उसको नोटिफिकेशन की परिभाषा में लिया जाएगा। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2P, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। अगली परिभाषा जो वो सेक्शन 2P के तहत पर्सन की परिभाषा है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। इट इंक्लूड्स, पर्सन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे। पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, अ कंपनी, अ फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not in India or outside India. It also includes any corporation established by or under any central government or provincial government, provincial act, या फिर गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 617 ऑफ द कंपनी एक्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पर्सन की जो परिभाषा जब आप कहते हैं तो पर्सन का अभिप्राय व्यक्ति से होता है। व्यक्ति का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर वो सब शामिल होंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई भी हिंदू अविभक्त कुटुंब, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, या फिर भारत में या भारत के बाहर व्यक्तियों का कोई भी संगम या व्यक्तियों का कोई भी निकाय, चाहे वो नियमित हो या ना हो। इसके अलावा किसी भी केंद्रीय, प्रांतीय या फिर राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किए गए जितने भी आप कहेंगे उसके, या फिर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के तहत जो भी कंपनी वगैरह जो भी स्थापित की जाएगी वो सब इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा लास्ट में आप कहेंगे कि भारत के बाहर किसी भी देश की विधियों द्वारा या उसके अधीन नियमित कोई भी निगमित निकाय। नेक्स्ट इज सहकारी सोसाइटी से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सहकारी सोसाइटी। एंड द लास्ट वन इज कोई भी स्थानीय प्राधिकरण। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे व्यक्ति की परिभाषा में शामिल होंगे। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेलिवेंट मार्केट। नेक्स्ट परिभाषा आपकी आती है रेलिवेंट मार्केट की, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2R। If we talk about the section 2R, that gives the definition of relevant market as it means market which may be determined by the commission with reference to the relevant product market or the relevant geographical market or with reference to both of the market। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेलिवेंट मार्केट है उसकी परिभाषा आपके सेक्शन 2 क्लोज R के तहत दी गई है, और सेक्शन 2 क्लोज R जो है वो आपको रेलिवेंट मार्केट की परिभाषा देता है। और इसके हिसाब से सेक्शन 2 क्लोज R जो है वो रेलिवेंट मार्केट के बारे में कहता है कि रेलिवेंट मार्केट का से अभिप्राय सुसंगत जो आपका जो मार्केट है, बाजार है, उससे अभिप्राय एक ऐसे बाजार से है जिसकी अवधारणा,
जिसका उदाहरण आयोग द्वारा सुसंगत उत्पाद बाजार या सुसंगत भौगोलिक बाजार के प्रतिनिर्देशक से या दोनों बाजारों के प्रतिनिर्देशक से हुआ है। तो वो सारे के सारे जो बाजार है वो सुसंगत बाजार कहलाएंगे। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन द डेफिनेशन ऑफ रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट, जिसको हम कहते हैं सुसंगत भौगोलिक बाजार। यदि हम सुसंगत भौगोलिक बाजार की बात करते हैं तो उसका अभिप्राय एक ऐसे बाजार से है जिसमें एक ऐसा क्षेत्र समाविष्ट है जिसमें माल के प्रदाय या सेवाओं के व्यवस्था या माल या सेवाओं के भोग के लिए प्रतिस्पर्धा की स्थितियां सुस्पष्ट रूप से समान हैं और उन्हें पड़ोसी क्षेत्रों में व्यापक स्थितियों से सुभिन्न किया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भौगोलिक मार्केट की जब आप बात करते हैं, रेलिवेंट भौगोलिक मार्केट की आप बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल मार्केट की आप बात करते हैं, तो वहाँ पे जो रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट है इसकी जो परिभाषा सेक्शन 2 क्लोज एस के अंदर दी गई है। और सेक्शन 2 क्लोज एस के तहत रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट का मतलब अ मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया इन विच कंडीशन ऑफ द कंपटीशन फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज और डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विसेज are distinctly homogeneous and can be distinguished from the condition prevailing in the neighboring area. If we talk about the next definition, that is the definition of relevant product market. That is definition given under section 2T. तो section 2T जो relevant product market को परिभाषित करता है। तो if we talk about the relevant product market, section 2T, तो उसको हम क्या कहेंगे? It means market comprising all those products. यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है कि वो मार्केट जो इन्हीं सभी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करता है या उन सर्विसेज को। तो इट मीन्स मार्केट कंप्राइजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच आर रिगार्डेड एज इंटरचेंजेबल एंड सब्स्टिट्यूटेबल बाय द कंज्यूमर बाय रीजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, देयर प्राइसेस एंड इंटेंडेड यूज। जैसा मैंने आपको बताया, सुसंगत उत्पाद बाजार से अभिप्राय ऐसे बाजार से है जो ऐसे सभी उत्पादों या सेवाओं से मिलकर बना है जो उत्पादों और सेवाओं की विशिष्टताओं, उनकी कीमत और आश्रित उपयोग के कारण उपभोक्ता द्वारा अंतर्निर्णय या प्रतिस्थापनीय माने जाते हैं। If we talk about the next definition, that is the definition of service that is deployed under section 2U. अगली जो परिभाषा है वो सेक्शन 2U के तहत सर्विस की परिभाषा है जिसको हम कहते हैं सेवा। तो सर्विस मीन्स एनी सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन विच इज मेड अवेलेबल टू द पोटेंशियल यूजर्स एंड इट इंक्लूड्स द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज इन कनेक्शन विद द बिजनेस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल मैटर्स such as banking, communication, education, financing, institution, insurance, chit funds, real estate, processing and supply of electrical and other energy, boarding, lodging and entertainment, amusement, construction, conveying of news, information and advertising। ये सारे के सारे आप क्या कहेंगे, इसे सेवा माना जाता है। तो सेवा से अभिप्राय ऐसी सेवाओं से है जो संभावित उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है या इसके अंतर्गत कोई भी औद्योगिक या वाणिज्यिक विषय, जैसे मैंने आपसे बताया बैंककारी, संचार, शिक्षा, वित्त पोषक, बीमा, चिट फंड, स्थावर संपदा, परिवहन, भंडारण सामग्री, उपचार, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा का प्रदाय, बोर्डिंग, निवास, मनोरंजन, आमोद, मरम्मत, समाचार या सूचना का प्रसार या विज्ञापन के कारोबार, ये सभी सेवाओं में शामिल होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, सेवा की जो परिभाषा है, सर्विस की जो परिभाषा है वो सेक्शन 2U के अंदर दी गई है। इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट डेफिनेशन, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आ जाती है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की जो परिभाषा है वो आपको दी गई है सेक्शन 2 क्लोज ओ के अंदर। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी, बोर्ड, कॉरपोरेशन, काउंसिल, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी या कोई भी बॉडी कॉरपोरेट विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ एनी सर्विसेज और मार्केट, देयरफॉर एनी मैटर कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल डेटो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे परिभाषा दी गई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मैंने आपको बताया जो कानूनी प्राधिकरण
कानूनी प्राधिकरण मतलब एक ऐसा प्राधिकरण, बोर्ड या अधिनियम या परिषद या कोई भी संस्था या विश्वविद्यालय या कोई भी निगमन निकाय जो केंद्रीय, राज्य या मतलब एक प्रांतीय अधिनियम या उसके अधीन माल का उत्पादन या प्रदाय या उसके लिए किसी भी सेवा को बाजार की व्यवस्था को विनियमित करने या प्रयोजन के लिए स्थापित किया जाता है, तो वो सारी की सारी आपकी कहलाएंगी कानूनी प्राधिकरण या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट परिभाषा आपकी इसमें आती है ट्रेड की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो नेक्स्ट परिभाषा आपको जो कहेंगे ट्रेड की जो परिभाषा है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन, जो ट्रेड की परिभाषा वो डिफाइन की गई सेक्शन 2 क्लोज एक्ट के तहत। तो 2 क्लोज एक्ट जो ट्रेड की परिभाषा को कहता है कि इट मीन्स एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और कंट्रोल ऑफ गुड्स एंड इंक्लूड द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। तो जब हम ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, तो व्यापार से अभिप्राय माल के उत्पादन, वितरण, भंडारण, नियंत्रण से संबंधित कोई भी व्यापार, कारोबार या उद्योग या आजीविका से है, और इसके अंतर्गत सब सेवाओं की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये सारी परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं सेक्शन 2 क्लोज 2 के तहत जो दी गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया, तो दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस व्हिच आर डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 2 के अंदर ये कुछ परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बताई गई हैं। इसके बाद आप जब कहेंगे तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। इफ वी टॉक अबाउट दिस टू डेफिनेशन, इन दोनों डिफरेंस की जब हम बात करते हैं, जैसा आपको पता है कि रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट या जो रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट है, दीज आर दिस टू डिस्टिंक्ट टर्म्स, ये दोनों अलग अलग टर्म हैं। जब हम बात करते हैं रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट की, तो इट मीन्स ज्योग्राफिकल मार्केट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द प्रोड्यूसर्स और सेलर्स और द प्रोडक्ट सर्विस, ये इसकी लोकेशन को बता रहा है। जबकि जब रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट की बात करता है वो प्रोडक्ट की बात करता है। तो रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, द प्रोडक्ट मार्केट, द गुड्स एंड सर्विसेज, वहाँ पे प्रोडक्ट की बात की जा रही है, गुड्स और सर्विसेज के। If you talk about the relevant geographical market, that defines the relevance. Geographical market is the market which is determined by the competition authority, having regard to R or any of the flowing factors. वहाँ पे जब रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट की बात करते हैं तो उसको इन क्राइटेरिया के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है। कौन कौन से क्राइटेरिया बताए गए? रेगुलेटरी ट्रेडिंग बैरियर, लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट एंड लैंग्वेज, कंज्यूमर प्रेफरेंस, नीड फॉर सिक्योरिंग द रेगुलर सप्लाई। ये सारी की सारी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी प्रोडक्ट मार्केट को, रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट को डिटरमाइन करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, इट इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू 3 क्राइटेरिया। वहाँ पे 3 क्राइटेरिया बताए गए रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट के लिए, डिमांड साइड, सप्लाई साइड सब्स्टिट्यूशन एंड पोटेंशियल कंपटीशन। तो दीज आर द 2 मेन डिफरेंसेस बिटवीन द रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट एंड रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, जो आपकी सेक्शन 2 के तहत दी गई थी। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो एक पॉइंट वो दिया हुआ मैंने कवरेज का, कि जैसे रेलिवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट की जब आप बात करते हो, दैट डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल एरिया। वहाँ पे जब ज्योग्राफिकल मार्केट की बात करते हो वो ज्योग्राफिकल एरिया को बताएगा कि ओवर विच सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। इफ वी टॉक अबाउट द रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट, दैट डिफाइंस द डायमेंशन एंड टेल्स ऑल दोज प्रोडक्ट्स दैट आर sufficiently close substitute of the product. If we talk about the relevant geographical market, that is defined under section 2S. और if we talk about the relevant product market, that is defined under section 2T. तो ये भी आप डिस्टिंग्विश दोनों में कर सकते हैं। तो दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो मैंने आपको बताई है सेक्शन 2 के तहत। और दीज आर ये कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में 2 या 3 डेफिनेशन जनरली पूछ ही ले जाती हैं, तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपटीशन एक्ट। ये आपके कंपटीशन एक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जिनमें से आपको जनरली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.